تو جب میں ان کو ملی تو وہ بہت ڈسٹربڈ اور بہت غصے میں تھے. کہتے ہیں کہ اتنی مینٹل ٹارچر میں انہوں نے رکھا ہوا ہے انہیں اور بشرا بی بی کو. کہتے ہیں کہ چھوٹے سے کمرے میں کہتے 4 ہفتے سے کسی کو ملنے نہیں دیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ سارا عاصم منیر ہے, یہ رسپانسبل ہے, ایک وہ ذہنی مریض ہے, وہ اس گھٹیا لیول پہ کہتے وہی صرف اتر سکتا ہے اور کوئی نہیں اتر سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو جب میں ان کو ملی تو وہ بہت ڈسٹربڈ اور بہت غصے میں تھے. انہوں نے بتایا صحت کی بتا رہی ہوں کہ صحت انہوں نے کہتے کہ اتنی مینٹل ٹارچر میں انہوں نے رکھا ہوا ہے انہیں اور بشرا بی بی کو. کہتے کہ چھوٹے سے کمرے میں کہتے 4 ہفتے سے کسی کو ملنے نہیں دیا. میں ہی آخر ایک میں ہی ملی تھی 4 ہفتے پہلے. اور کہتے یہ جو فزیکل ٹارچر ہے, یہ جو مینٹل ٹارچر ہے, یہ فزیکل ٹارچر سے بھی زیادہ برا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ سارا عاصم منیر ہے, یہ رسپانسبل ہے. اور میں جب ان کو بتایا کہ میں نے ان کو بتایا سارا کہ نورین نیازی کے ساتھ انہوں نے پولیس والوں نے کیا کیا تو بہت ڈسٹرب ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ذرا اچھے الفاظ میں بتاتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ عاصم منیر کے یہ کہنے پہ یہ سب کچھ ان کی جرت ہے یہ سب کچھ کرنے کی. ایک وہ ذہنی مریض ہے, وہ اس گھٹیا لیول پہ کہتے وہی صرف اتر سکتا ہے اور کوئی نہیں اتر سکتا. کہ ایک ان کی عمر دیکھیں اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی جینٹل سی ہے, کچھ کرتی بھی نہیں ہے. کہتے جہاں انہوں نے یاسمین راشد جیسے کینسر سروائیور کو رکھا ہوا ہے جیل میں, بشرا بی بی کو اتنے عرصے سے ان کی بھی سارے وزٹس ان کے بچوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا, اور کچھ یہ سہولیات میں بھی کمی ہے. تو کہتے یہ صرف سب کچھ عاصم منیر کے انسٹرکشنز پہ ہو رہا ہے. اور اچھا پھر انہوں نے کچھ انسٹرکشنز دی, اور وہ کچھ پارٹی والوں نے, کیونکہ اتنے عرصے سے تو آپ کو پتہ ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا, تو انہوں نے کچھ میسیجز دیے تھے, کچھ سوالات بھیجے تھے ان کے لیے. تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے پچھوایا تھا کہ پنجاب بار کے بارے میں, پاکستان بار کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں, انہوں نے بتایا کہ حامد خان اور سلمان اکرم راجہ یہ جو بھی کینڈیڈیٹ سلیکٹ کریں گے پی ٹی آئی یونائٹڈ ہو کے ان کو سپورٹ کرے گی, اور انہی کے جو یہ کہیں گے اس کے مطابق ساری پی ٹی آئی یونائٹڈ ہوئے گی اس کینڈیڈیٹ کے لیے. پھر انہوں نے علامہ ناصر اور محمود خان اچکزئی کے بارے میں بتایا. وہ بڑے ڈسٹرب تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کی بہت عزت کرتا ہوں, اور وہ ان کو ابھی تک انہوں نے اپنے پارٹی کے اہلکاروں کو انسٹرکشنز دیے ہیں کہ آپ سارے انشور کریں کہ اپوزیشن نیشنل اسمبلی کے یہ جو اسپیکر ہے اور جو سینٹ کا چیئرمین ہے ان کے ساتھ آپ پروٹیسٹ کریں, آپ انشور کریں کہ ان کی نوٹیفیکیشن جاری ہو. خان صاحب نے ان کو بڑی عزت کرتے ہیں, اور ان کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر سلیکٹ کیا, اور وہ اس چیز کے بارے میں ابھی تک شوق تھا کہ ابھی تک ان کا نہیں ہوا. اور اس کے ہاں پولیٹیکل کمیٹی ہاں انہوں نے کہا جی اچھا, انہوں نے خان صاحب نے تحریک کا ان کو رسپانسبلٹی دی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں پہ یہ بہت سختی کرتے ہیں. تو انہوں نے ان کو وہ لیڈرز ہیں اس الائنس کے, اور ان کی ذمہ داری ہے کہ جو کال دے گی ساری پی ٹی آئی ان کو اس کال میں سپورٹ کرے گی. خاص طور پہ خان صاحب کے اپنے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں, یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کو خان صاحب نے کہا سب نے بھرپور مکمل شرکت کرنی ہے. اور ہاں نہیں اور پارلیمنٹری ان کو پارلیمنٹری لیڈر ابھی تک سلیکٹ نہیں, اس کی جگہ خالی ہے. انہوں نے شاہد خٹک کو کہا کہ اس کو پارلیمنٹری لیڈر بنا دیں اپوزیشن کا. اور بتایا تھا سہیل افریدی کے بارے میں نے کہا جی وہ بہت خوش تھے. انہوں نے کہا جی میں اس کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں. انہیں کہا کہ انہیں انکریج کیا کہ آپ فرنٹ فٹ پہ کریں. یہاں پاکستان میں کوئی آئین اور قانون اب ختم ہو چکا ہے, یہ سارا پی ٹی آئی کے لیے آئین اور قانون ہے, اور باقی سارے اس قانون کے اوپر ہیں. جب کوئی قانون نافذ کرنا تو پی ٹی آئی پہ لے آتے ہیں. کہ انہوں نے کہا جی آپ فرنٹ فٹ پہ کریں, اور وہ انہیں خوش تھے. انہوں نے کہا جی آپ اپریشیٹ کیا, اور ان کے لیے انہوں نے اور بھی پیغامات دیے جو میں ان کو پرسنلی دوں گی. آئی ایل ایف کے حوالے سے کے پی نہیں, اور وہ میں اچھا, اور میں ڈفرینٹ ہاں ان کو ایک اور جو ان کو دیکھیں آپ یہ جو پہلے جو میں اندر گئی نا, تو ان کی جو مطلب ان کی جو پریشانی تھی نا, وہ ان کو غصہ تھا, اور وہ پریشان تھے کہ جو کہتے جو آئسولیشن ہے نا, کہتے آئسولیشن اتنی بری ہے
اور ان کو اتنا لمبا پہلے تو ہفتے میں ایک دفعہ ہمیں سے کوئی مل لیتا تھا, مکمل آئسولیشن, اور اتنے ڈسٹربڈ. ہم نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کے باہر بیٹھ رہے ہیں. تو جب ان کو یہ بھی پتا چلا کہ یہ کوئی این ڈی یو کوئی ان جگہ اس قسم کی تو وہ اور ان کے پارٹی والے اندر کس پارٹی کے لوگوں نے شرکت کیا, وہ اتنے ڈسٹرب ہوئے, کہتے ہیں ہم اتنی تکلیف دہ جیل کاٹ رہے ہیں, اور جن لوگوں نے ہمیں جیل میں ڈالا ہوا ہے آپ انہی کے پاس جا کے آپ وہاں ان کے ساتھ سوشلائز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو بھی میرے پارٹی والے جو وکٹ کے دونوں سائڈ پہ کھیلیں گے ان کی میرے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے, اور ان کو نے کہا یہ میرے پارٹی کے میر صادق اور میر جعفر ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ افغانستان کا ان کو بڑی تکلیف تھی. کہتے ہیں کہ افغانستان کا آپ کو پتہ کتنی دفعہ انہوں نے یہی بھیجا, ہمیں ٹویٹس ان کی پچھلی آپ دیکھ چکے ہیں کہ افغانستان میں پہلے انہوں نے ڈرون حملے کیے, پہلے دھمکیاں تھیں, پھر ڈرون کے ساتھ حملے کیے, پھر ان کے لوگوں کے اتنے ہمارے جو پاکستان میں جو عرصے سے رہ رہے تھے ان کو انہوں نے کتنی بے بدبی سے بے عزتی سے ان کو اپنے ملک سے نکالا. تو کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے عاصم منیر ان کو پرووک کر رہا تھا, اور مقصد یہ تھا کہ انٹرنیشنلی اپنے آپ کو مجاہد کہہ سکے. اور اس کا تب سے کہہ رہے ہیں کتنے مہینوں سے کہ اگر یہ کرو گے تو دہشت گردی بڑھے گی. آپ جو ڈرون اٹیک اپنے جو ٹرائبل ایریا میں ڈرون اٹیک کرتے ان پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہوئے گی تو بڑھے گی. کہتے ہیں اب کہتے ہیں کہ عاصم منیر کی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارا سارا ملک سفر کر رہا ہے, دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. ان کو بہت افسوس تھا. نہیں تو وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے تاکہ انٹرنیشنل اس کو مجاہد کہہ سکے. سر ان کے لیے کر رہے ہیں, اس کو اپنے ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اچھا, اور پھر انہوں نے بڑا یہ اخبار میں نے پڑھا جو کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اور کہتے ہیں کہ جب تک ہماری قوم کو کہا کہ جب تک آپ غلامی کی مائنڈ سیٹ میں رہیں گے, آپ یہ چینی کا مافیا, یہ لینڈ مافیا, یہ مینڈیٹ چور, یہ سارے جو ایکسٹینشن مافیاز ہیں, کہتے ہیں یہ آپ کو غلام بنا کے ہی رکھیں گے. اگر آپ نے اپنے نسلوں کے لیے کچھ آزادی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا, اپنی آزادی کے لیے لڑنا پڑے گا, ورنہ یہ آپ کو کبھی آج یہ ہے پھر نیکسٹ ان کی آپ دیکھ لیں ان کی نسلوں کے غلام بنو گے اور آپ کی نسلیں بھی ان کی غلام بنیں گی. اس لیے اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, کہتے اب اٹھیں, کیونکہ اگر نہیں کیا تو حال یہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے سب کا. کسانوں کا ان کو ایکچولی خاص کسانوں کی نے میرے سے آج بات کی تھی کہ ان کے بارے میں بڑے پریشان تھے کہ ان کے ساتھ آج کل کیا ہو رہا ہے. صحت کے بارے میں یہ بتائیں. صحت ماشاء اللہ ٹھیک تھی, غصے میں تھے, ڈسٹرب اس طرح تھے کہ غصے میں اس لیے تھے کہ انہوں نے آئسولیشن, کہتے ہیں یہ فزیکل ٹارچر سے مینٹل ٹارچر زیادہ برا ہوتا ہے. اور ایون آپ اگر ہیومن رائٹس کے جو آپ رولز دیکھیں نا اس میں یہ بھی ٹارچر میں ہی کنسیڈر ہوتا ہے جو آج کل کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے اوپر کوئی قانون اور آئین نافذ نہیں ہے تو ہم بھی پھر ہر قانون اور آئین سے آزاد ہو جائیں گے. اچھا, اس میں ایک سیکنڈ اپنا لائے عمل بتا لیتے ہیں. ہم اپنا لائے عمل بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں جو آج میری بہن نے آ کے بتایا ہے کہ عمران خان کتنے اپسیٹ ہیں. انہوں نے بڑے طریقے سے پچھلے 8 مہینوں سے عمران خان کو آہستہ آئسولیٹ, 1 سال سے آئسولیٹ کرنا شروع کیا ہے. پارلیمنٹ لیڈر اپوزیشن بنا دیا, کیا کہیں گے؟ بس یہ میں اپنے لیڈر کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ میرے لیے بڑی بات ہے کہ جیل کے اندر میں اپنے لیڈر کو یاد ہوں. بس یہ عہدے میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے, یہ بہت چھوٹے ہیں. پلان ایک ہی ہے, ہم نے ایم این ایز نے, ایم پی ایز نے, جن کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے, ہم نے اپنے خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنا ہے. ہر فورم کے اوپر ہم نے کوشش کرنی ہے, پارلیمان کے اندر بھی, پارلیمان کے باہر, روڈوں کے اوپر, اڈیالہ کے سامنے, اڈیالہ کے باہر. ایک ہی کوشش ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جو غیر سیاسی خاتون ہیں وہ ان کو ہم باہر لے کے آئیں. بس باقی یہ عہدے موہدے رتبے آپ کو پتہ ہے سہیل افریدی کے سامنے سی ایم شپ اختیار ہوتا ہے, وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا, روڈ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے. میں بھی ادھر روڈ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہوں. دیکھیں آج عمران خان کی بہن عظمیٰ خان کی ملاقات کروا دی گئی ہے. دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد کھٹک صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. شاہد کھٹک صاحب کیا کہیں گے, آج ملاقات کروا دی گئی ہے, آپ صبح سے ان کے ساتھ ان کی بہنوں کے ساتھ تھے, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ابھی میں نے نہیں سنی پریس کانفرنس کہ وہ انہوں نے کیا ہے یا خان کا کیا پیغام آیا ہے, وہ تو بعد میں پتہ چلے گا. لیکن آج میں اپنی طرف سے
पंजाब की आवाम को, पंजाब के वर्कर्स को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस दलेरी और बहादुरी के साथ आज वो आए। जब पंजाब निकलता है पूरा पाकिस्तान निकलता है, जब पंजाब जागता है पूरा पाकिस्तान जागता है। और जब पंजाबी ठान लें और पंजाब आज जिस तादाद में आए, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से कि आज इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आ गए कि इन्होंने मुलाकात करी, वरना इन्होंने मुलाकात नहीं करानी थी। और अब मैं अपने पंजाब की आवाम को पैगाम देता हूँ, उनको अपील करता हूँ कि मेरे पंजाब के लोगों, आप लोग निकलोगे, खान निकलेगा। आप लोग आगे बढ़े, हम आपके पीछे खड़े होंगे। तोड़ दे ये डर और खौफ के बोझ। कोई यहाँ पे खुदा नहीं है, खुदा सिर्फ एक है और जिंदगी और मौत जो है वो अल्लाह ताला ने देनी है। तो अगर हम दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ खड़े रहें, जिस तरीके से हमें पता है कि आपको 2-2.5-3 सालों से जिस अजियत का आप लोगों ने मुकाबला किया, जो जबर और जुल्म पंजाब में हुआ, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती कि पंजाब के लोगों के साथ जो पंजाब पुलिस ने, वहाँ की इंतजामिया ने, वहाँ के इदारों ने जिस तरीके से पंजाब को टारगेट किया, इसके ये हम सब हमें पता है ये तमाम चीज़ें। लेकिन हमारा लीडर भी तो तकरीबन उनको 2.5 साल हो गए जेल के अंदर, तो उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उनके ख़ानदान की जो कुर्बानियाँ हैं, वो तो हमसे कई गुना बढ़ के हैं। तो आप लोग जब निकलेंगे, आप लोगों के निकलने से फ़र्क पड़ता है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम हमेशा आप लोगों के साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी, आपकी पार्टी की क़यादत आपके साथ खड़ी रहेगी। जब भी मुश्किल वक्त आपके ऊपर आए, हम हमेशा से आपके लिए हम खड़े भी हुए हैं, आपके ऊपर भी खड़ी हुए हैं। और जब आपको दर्द होता है, हमें बड़ा दर्द होता है। जब आपके घरों की चादर और चारदीवारियाँ पामाल की जाती है, हमें बड़ी तकलीफ होती है इन चीज़ों का। लेकिन आपने खुद स्टैंड लेना होगा अपने लिए। और मुझे उम्मीद है अपने पंजाब के लोगों से कि वो जिस तरह 8 फरवरी को इमरान खान साहब के लिए निकले, जिस तरीके से आप लोगों ने आलू, टमाटर का कैंची, प्याज, मुख्तलिफ किस्म के निशानात के ऊपर आपने अपने उम्मीदवारों को कामयाब किया, तो इंशाल्लाह तवक्को यही है कि पंजाब जो है वो जाग गया है। और आज मैं जो जिस इनकलाब की बुनियाद इधर अडयाला जेल में डाल दी है, ये मोमेंटम बन गया है। अब इसी मोमेंटम को हम पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे इंशाल्लाह। इमरान खान साहब हमारे इंतज़ार में है कि कब आएंगे। बार बार वो मुड़ मुड़ के देख रहे हैं हमारी तरफ कि पंजाब के नौजवान आएंगे, मुझे रेस्क्यू करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पंजाब के नौजवान जो है वो थोड़ी देर कर दी उन्होंने, लेकिन अपने लीडर को निकालने के लिए वो फ्रंट पे आएंगे और हमेशा आते हैं। पंजाब ने बड़ी कुर्बानी दी तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन थोड़ी सी मज़ीद दरकार है, वो भी हमने देनी है। रात को वज़ीर आला भी आते हैं मुलाकात के लिए, अब उम्मीद है कि उनकी मुलाकात भी करा दी। अगर नहीं करवाई जाएगी तो फिर क्या रद्द होगा? क्योंकि बड़ी तादाद हमने पहले इमरान खान साहब का पैगाम हम सुन लें कि उनकी क्या डायरेक्शन है, उसके बाद फिर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो जब मैं इनसे मिली तो वो बहुत डिस्टर्ब और बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बताया सेहत की बता रही हूँ कि सेहत उन्हें कहते हैं कि इतनी मेंटल टॉर्चर में इन्होंने रखा हुआ है उन्हें। और बुशरा बीबी को कहते कि छोटे से कमरे में कहते 4 हफ्ते से किसी को मिलने नहीं दिया। मैं आखिर एक मैं ही मिली थी 4 हफ्ते पहले। और कहते ये जो फिज़िकल टॉर्चर है, ये जो मेंटल टॉर्चर है, फिज़िकल टॉर्चर से भी ज़्यादा बुरा है। और उन्होंने कहा कि ये सारा आसिम मुनीर है, ये रिस्पॉन्सिबल है। और मैं जब इनको बताया कि मैंने इनको बताया सारा कि नौरीन न्याजी के साथ इन्होंने पुलिस वालों ने क्या किया, तो बहुत डिस्टर्ब हो गए। और उन्होंने कहा कि मैं आपको ज़रा अच्छे अल्फाज में बताती हूँ कि उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर के ये कहने पे ये सब कुछ इनकी ज़रूरत है, ये सब कुछ करने की। वो जहनी मरीज़ है, वो इस घटिया लेवल पे कहते वही सिर्फ उतर सकता है और कोई नहीं उतर सकता। कि एक इनकी उम्र देखें और आपको पता है कि कोई जेंटल सी है, कुछ करती भी नहीं है। कहती जहाँ उन्होंने यास्मीन राशिद जैसे कैंसर सर्वाइवर को रखा हुआ है जेल में, बुशरा बीबी को इतने अरसे से उनकी भी सारे विजिट्स उनके बच्चों को नहीं मिलने दिया जा रहा, और कुछ ये सहूलियात में भी कमी है। तो कहते ये सिर्फ सब कुछ आसिम मुनीर के इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है। और अच्छा, फिर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और वो कुछ पार्टी वालों ने, क्योंकि इतने अरसे से तो आपको पता उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने कुछ मैसेजेस दिए थे, कुछ सवालात भेजे थे उनके लिए। तो ये सलमान अकरम राजा साहब ने पूछवाया था कि पंजाब बार के बारे में, पाकिस्तान बार के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, उन्होंने बताया कि हामिद खान और सलमान अकरम राजा ये जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे, पीटीआई यूनाइटेड होकर उनको सपोर्ट करेगी। और इन्हीं के जो ये कहेंगे उसके मुताबिक सारी पीटीआई यूनाइटेड होगी इस कैंडिडेट के लिए। फिर उन्होंने अलामा नासिर और महमूद खान अचकज़ई के बारे में बताया। वो बड़े डिस्टर्ब थे। उन्होंने कहते हैं कि मैं उन दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ, और वो उनको अभी तक उन्होंने अपने पार्टी के एहलकारों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप सारे इंश्योर करें कि अपोजिशन नेशनल असेंबली के ये जो स्पीकर है और जो सेनेट का चेयरमैन है, उनके साथ आप प्रोटेस्ट करें। आप
इंश्योर करें कि उनकी नोटिफिकेशन जारी हो। खान साहब ने उनको बड़ी इज्जत करते हैं और उनको उन्होंने लीडर अपोजिशन लीडर सिलेक्ट किया और वो इस चीज़ के बारे में अभी तक शौक थे कि अभी तक उनका नहीं हुआ। और हाँ पॉलिटिकल कमेटी हाँ उन्होंने कहा जी अच्छा इन्होंने खान साहब ने तहरीक का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई वालों पे ये बहुत सख्ती करते हैं, तो इन्होंने उनको वो लीडर्स हैं उस अलायंस के और उनकी जिम्मेदारी है कि जो कॉल देगी सारी पीटीआई उनको उस कॉल में सपोर्ट करेगी। ख़ास तौर पे खान साहब के अपने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनको खान साहब ने कहा सब ने भरपूर मुकम्मल शिरकत करनी है। और हाँ नहीं और पार्लियामेंट्री हाँ उनको पार्लियामेंट्री लीडर अभी तक सिलेक्ट नहीं उसकी जगह खाली है। उन्होंने शायद खट्टर को कहा कि इसको पार्लियामेंट्री लीडर बना दें अपोजिशन का। और कुछ बताया था सुहेल अफरीदी के बारे में उन्होंने कहा जी वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। उन्हें कहा कि उन्हें इंकरेज किया कि आप फ्रंट फुट पे करें। यहाँ पाकिस्तान में कोई आइन और कानून अब ख़त्म हो चुका है, ये सारा पीटीआई के लिए आइन और कानून और बाकी सारे उस कानून के ऊपर है। जब कोई कानून नाफिज करना तो पीटीआई पे ले आते हैं। तो उन्होंने कहा जी आप फ्रंट फुट पे करें और वो उन्हें खुश थे। उन्होंने कहा जी आप अप्रिशिएट किया और उनके लिए उन्होंने और भी पैगाम दिए जो मैं उनको पर्सनली दूँगी। नहीं और वो मैं ज़्यादा अच्छा और मैं डिफरेंट हाँ उनको एक और जो उनको देखिए आप ये जो पहले जो मैं अंदर गई ना तो उनकी जो मतलब उनकी जो परेशानी थी ना वो उनको गुस्सा था और वो परेशान थे कि जो कहते जो आइसोलेशन है ना, कहते आइसोलेशन इतनी बुरी है और उनको इतना लंबा पहले तो हफ्ते में एक दफ़ा हम में से कोई मिल लेता था मुकम्मल आइसोलेशन और इतने डिस्टर्ब। हमने उनको बताया कि हम आपके बाहर बैठ रहे हैं, तो जब उनको ये भी पता चला कि ये कोई एनडीयू कोई इन जगह इस किस्म की तो वो और इनके पार्टी वाले अंदर किस पार्टी के लोगों ने शिरकत किया, वो इतने डिस्टर्ब हुए। कहते हैं हम इतनी तकलीफ दे जेल काट रहे हैं और जिन लोगों ने हमें जेल में डाला हुआ है आप उन्हीं के पास जाके आप वहाँ उनके साथ सोशलाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी मेरे पार्टी वाले जो विकेट के दोनों साइड पे खेलेंगे उनकी मेरे पार्टी में कोई जगह नहीं है। और उनको ने कहा ये मेरे पार्टी के मीर सादिक और मीर जाफर है। फिर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का उनको बड़ी तकलीफ थी। कहते हैं कि अफगानिस्तान का आपको पता कितनी दफ़ा उन्होंने ये भेजा हमें ट्वीट्स उनकी पिछली आप देख चुके हैं कि अफगानिस्तान में पहले इन्होंने ड्रोन हमले किए, पहले धमकियाँ थी, फिर ड्रोन के साथ हमले किए, फिर इनके लोगों के इतने हमारे जो पाकिस्तान में जो अरसे से रह रहे थे उनको इन्होंने कितनी बेदर्दी से बेइज्जती से इनको अपने मुल्क से निकाला। तो कहते हैं कि ये जानबूझ के आसिम मुनीर उनको प्रोवोक कर रहा था और मकसद ये था कि इंटरनेशनली अपने आप को मुजाहिद कह सके। और उसका वो तब से कह रहे हैं कितने महीनों से कि अगर ये करोगे तो दहशतगर्दी बढ़ेगी। आप जो ड्रोन अटैक अपने जो ट्राइबल एरिया में ड्रोन अटैक करते उन पर भी ये कहते हैं कि इससे दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी तो बढ़ेगी। कहते हैं अब कहते हैं कि आसिम मुनीर की पॉलिसीज़ है जिसकी वजह से आज हमारा सारा मुल्क सफ़र कर रहा है, दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। उनको बहुत अफसोस था। अब वो अपने नहीं तो वो कहते हैं सब कुछ इसलिए कर रहा था कि इंटरनेशनल उसको मुजाहिद कह सके, सारे उनके लिए कर रहे हैं, उसको अपने मुल्क की कोई परवाह नहीं है। अच्छा और फिर उन्होंने बड़ा ये अखबार में पढ़ा जो किसानों के साथ हो रहा है और कहते हैं कि जब तक हमारी कौम को कहा कि जब तक आप गुलामी की माइंड सेट में रहेंगे आप ये चीनी का माफिया, ये लैंड माफिया, ये मैंडेट चोर, ये सारे जो एक्सटेंशन माफियाज हैं, कहते ये आपको गुलाम बना के ही रखेंगे। अगर आपने अपनी नस्लों के लिए कुछ आज़ादी चाहते हैं तो इसके लिए आपको उठना पड़ेगा, अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा, वरना ये आपको कभी आज ये है फिर नेक्स्ट उनकी आप देख लें उनकी नस्लों के गुलाम बनोगे और आपकी नस्लें भी उनकी गुलाम बनेगी। इसलिए अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहते अब उठे, क्योंकि अगर नहीं किया तो हाल यही होगा जो आजकल हो रहा है सबका। किसानों का उनको एक्चुअली खास किसानों की मेरे से आज बात की थी कि उनको उनके बारे में बड़े परेशान थे कि उनके साथ आजकल क्या हो रहा है। सेहत के बारे में ये बता रहे सेहत माशाल्लाह ठीक थी, गुस्से में थे, डिस्टर्ब इस तरह थे कि गुस्से में इसलिए थे कि इन्होंने आइसोलेशन कहते हैं ये फिजिकल टॉर्चर से मेंटल टॉर्चर ज़्यादा बुरा होता है। और इवन आप अगर ह्यूमन राइट्स के जो आप रूल्स देखें ना उसमें ये भी टॉर्चर में ही कंसिडर होता है जो आजकल कायदे हैं। तो अगर हमारे ऊपर कोई कानून और आइन नाफिज नहीं है तो
हम भी फिर हर कानून और आइन से आज़ाद हो जाएंगे। मैडम माशाल्लाह खान साहब सेहतमंद है, सबसे बड़ी बात ये एक है। सेकंड, मैडम अपना खान साहब लाइमल सेहतमंद बता है माशाल्लाह, सबसे हम बड़ी अपना बात लाइमल है। बता देते हैं कि देखें जो आज हमें मेरी बहन ने आके बताया है कि इमरान खान कितने अपसेट हैं। इन्होंने बड़े तरीके से पिछले 8 महीनों से इमरान को आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट, 1 साल से आइसोलेट करना शुरू किया। पहले इन्होंने पॉलिटिकल लोगों को बंद कर दिया जुमेरात के दिन, जो कि माशाल्लाह अब सुहेल अफरीदी उस दिन सारी रात बैठे हैं। ये वही जुमेरात का दिन है जो 1 साल से मुलाकातें इन्होंने पॉलिटिकल लोगों की बंद की हुई हैं, जो कि कोर्ट ऑर्डर्स हैं इनके पास। दूसरा, मंगल के दिन फैमिली के 6 लोग और वकला के 6 वकला, मतलब 300 केसेस जिनके ऊपर हों, उनके अंदर ना उनके वकला मुलाकात कर सकते हैं, ये इलीगल है। ना फैमिली मिल सकती है, ये इलीगल है। और आज जो हमें, जब मेरी बहन ने आके हमें बताया है कि वो कितने अपसेट थे, तो अब हम जो हमारा अपना लायमल ये है कि अब ये एक मेरी बहन को ये तमाशा बंद होगा। हम यहीं बैठेंगे हर मंगल को, और जो पार्टी वाले हैं वो बैठेंगे जुमेरात वाले दिन, जब तक बहाल नहीं करते जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं जो 6 लोगों के। अगले हफ्ते मंगल को हम इनको पैगाम दे देते हैं जेल इंतज़ामिया को कि 6 जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो मिलेंगे और 6 वकला मिलेंगे, और जुमेरात वाले दिन जो 6 पार्टी के लोगों को इजाज़त है मिलने की, वो सब मिलेंगे। ये हमारी अब अगला जो जुमेरात को सुहेल अफरीदी खुद यहाँ पे मौजूद होंगे, जिन्होंने इजाज़त, जिनके पास कोर्ट ऑर्डर है मुलाकात का। और उसके अलावा अगले मंगल को हम सारे 6 रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स और 6 ही वकला अगर नहीं मुलाकात करेंगे, हम यहीं से नहीं उठेंगे। वही एहतजाज की काल भी दी खान साहब ने अंदर से कि एहतजाज करेंगे कि देखिए, इमरान खान ने आप अपने कौम को पैगाम दे दिया। ये वो इंसान है जो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, और जो आज उन्होंने बता दिया, जिनको आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट इस हद तक कर दिया था कि अगर आज हम यहाँ एहतजाज ना करते तो इमरान खान पिछले 7 हफ्ते से मुकम्मल आइसोलेशन में। मेरी बहन आज इन 7 हफ्तों में तीसरी दफ़ा मुलाकात हुई है 20 मिनट की। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कॉल क्या देनी है, आप बाहर देख लें या पीछे देख लें, हम खड़े भी नहीं हो सक रहे थे। लोगों का जोश इतना ज़्यादा है, वो हमें कह रहे थे, लोग हमें कह रहे थे कि आप खड़े क्यों हैं, आप जाएं अडयाला जेल की तरफ। तो हम देखें, हमारा काम है कंट्रोल करना। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि देखें गुस्सा बहुत बढ़ चुका है और हमें इसको बढ़ने नहीं देना। हम इससे भी हम यहाँ के साइड पे खड़े हुए हैं कि हमने इसको बढ़ने नहीं देना। इसलिए इनका काम है कि ये जो हमारी लीगल राइट्स हैं उसको बहाल करें। अगले हफ्ते हम इधर ही बैठेंगे, और इमरान खान ने जो को पैगाम दिया वो गौर से सुन लें उन्होंने क्या कहा है। तो ये जो सारी माफियाज हैं जिनके आपको ये चाहते हैं कि आप गुलाम बन जाएं, हम यहाँ रास्ते में आते हैं चक्री की तरफ से, आप भी कई लोग आते होंगे, तो हाउसिंग सोसाइटीज़ जिस स्पीड पे बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट 21 साल में सबसे बुलंद सतह पे है। और यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ जिस स्पीड से हमने 2 साल में बनते देखी हैं, हम तो उसके गवाह हैं कि इस वक्त सारा काम चल रहा है लैंड माफिया का। जैसे इमरान खान ने कहा, शुगर माफिया, हर किस्म की माफिया। जो मेरी बहन पैगाम दे रही है आपको इमरान खान का है कि अगर आप अपने लिए खुद नहीं खड़े हुए, इसके लिए कॉल क्यों देंगे वो इमरान खान? हमें नज़र नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें खुद ना इंसाफ मिल रहा है अदालतों से। तो अगर इमरान खान का पैगाम समझ लें, उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप इनके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, ये थोड़े से लोग हैं लेकिन आपको गुलाम बनाया हुआ है, अपने हक के लिए खड़े हो जाएं। अगर नहीं खड़े होंगे तो आप और आपकी अगली नस्लें इनके गुलाम रहेंगी। ये पैगाम है। अगर इसकी कोई ट्रांसलेशन आप खुद कर सकते हैं। 27 न्यायिक तरमीम के बारे में खान साहब ने कोई बात की है जो पास हुई है कि आपको मुलाकातें थे? थोड़ा 20 मिनट का टाइम था, वो इतनी जल्दी में ये हुआ। उनको वो पहले बता चुके हैं ना कि 27वीं के बारे में उनका बताया आपने कि जो भारतीय और अखबार मीडिया ने आपकी सेहत के मुतालिक, आपकी जेल के अंदर जो आपके साथ हो रहा है उसके मुतालिक ऐसी मुतदाद खबरें दी हैं, आपको तशवीश ना सिर्फ आपको ये नहीं, बल्कि इससे पहले पता था कि ये खबरें चल रही नहीं, इनको कुछ नहीं पता। आपके अखबार खबरें जो चलाते रहे वो खान साहब के मुतालिक। नहीं, वो झूठी नहीं। वो सही खबरें थी। आप मुझे ये बताएं, जब बंद कर देते हैं ना, आपको मिल के एक सेकंड सुन ले, जब आप इलीगली किसी का राब्ता ख़त्म कर देंगे, यही होगा। सबसे आसान तरीका हमारी हुकूमत के लिए ये था कि ये इमरान खान से उनकी फैमिली और उनके वकला की मुलाकात करवाने दें। इनका ख्याल था अगर इमरान खान को बंद कर देंगे तो सारी दुनिया भूल जाएगी। तो इनका आज ये तो उनको टेस्ट रन हो गई है कि कोई नहीं भूलेगा इनको। और दूसरी बात ये, मैं और बात बताऊं, आप लोग एक दफा बताएं सबके लिए कि इमरान खान के लिए जो दुआएं हैं ना वो पूरी दुनिया में है, इसलिए इमरान खान को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। और जो उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं उनके लिए बदुआएं हैं, उनके लिए जीना जिंदा रहना